Very good morning, students, and most welcome in online classes. As you know that in short composition, we have completed some topics like advertisement, notices, okay, and one other topic which is in your syllabus basically poster making. The same, the same chapter, okay, will be assigned by me as an assignment, as a notes to all of you. Okay, I'll give you the notes of that chapter, because that chapter basically is about your poster making. Okay, I'll give you the notes of the chapter, and in your syllabus 11th class, grammars also are given there. In this session, only 2 chapters we need to complete: tense and determination. Okay, tense is going on, and I have started your book snapshots too. You know that in our last class I touched the chapter number 2, the address by Marga Minko, and I believe that I should complete this chapter before having the next topic of a grammar section. Okay, students. Okay, the tense is going on. Don't forget that we have touched 2 topics of short composition: advertisement with 10 questions on plywood. Okay, in my point of view, in my views, I can say, okay, I'm sure about it. And in notices with 10 questions, and tense is going on. In the grammar, the tense is going on, and in readers we are having snapshot. Chapter number 1 was completed, and chapter number 2 is going on. It's time to finish the same chapter right now, chapter number 2 by the address by Marga Minko. So let's have the reader today. Okay, students, again to finish the same chapter. So we were on page number 13, the address Marga Minko. कुछ याद आया कहानी के बारे में? This story is about a daughter. This story is about a daughter who goes to find out the belongings of her mother in Holland after the Second World War. Do you know that about it? I told you about the same introduction in that class. You can just go there and have your line, okay? And as far as the matter of his conclusion is concerned, even after finding her mother's belongings, she decides not to take those belongings back at her home, because those belongings could not bring her dead mother back. So let's have the final touch of the same chapters in reader. Chapter number 2 we are having. Okay. So we were on page number. The page number is 13. Okay. I'm going to finish the chapter. Only the single page we have. I looked up. Address. उसी address पे गए जो माँ ने बताया था. My mother will be back soon. मेरी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी. Number 46 याद है आपको address? My mother will be back soon, said the girl. लड़की ने कहा मेरी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी. I have already made tea for her. मैंने पहले ही माँ के लिए चाय बना दी है. वो लड़की जो लगभग 15 साल की थी, उसने कहा मेरी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी, मैंने पहले ही माँ के लिए चाय बना दी है. Will you have a cup? Will you have a cup? Will you have a cup means will you have a cup of tea? क्या तुम एक कप चाय का लेना पसंद करोगी? Thank you. डॉक्टर ने कहा, जो बेटी आई है सामान लेने के लिए माँ का देखने के लिए, कहा थैंक यू नहीं. I looked up, मैंने ऊपर देखा. The girl put cups ready on the tea table. I looked up, मैंने ऊपर देखा. The girl put cups ready on the tea table. लड़की ने टी टेबल पर, चाय की जो टेबल है उस पर पहले से कप जो रेडी कर दिए थे. She had a broad back. लड़की की जो बैक है, जो पीठ है, काफ़ी ब्रॉड थी, काफ़ी चौड़ी थी. Just like her mother, उसकी माँ की तरह. She poured tea from a white pot. उसने white pot से सफ़ेद केतली से जो चाय poured किया, डाला, परोसा. All it had was a gold border on the lid. All it had was a gold border on the lid. और मैंने देखा उस केतली को, उस white कलर का जो pot था, all it had was a gold border on the lid. और lid पर, ढक्कन पर जो gold border था, गोल्ड का जो बॉर्डर था, मतलब सुनहरी कलर की बॉर्डर थी उस ढक्कन के ऊपर, लिड के ऊपर, उस वाइट केटल की उस लिड पे, ढक्कन पे गोल्ड बॉर्डर था. आई रिमेंबर, मुझे याद थी ये बात, मुझे वो गोल्ड बॉर्डर वाली बात याद थी. ओके, द थिंग्स बेसिकली दैट शी वाज लुकिंग एट द सेम एड्रेस बिलोंग्स टू हर मदर. ओके, आई रिमेंबर, मुझे बात याद थी. शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. शी ओपन अ बॉक्स, उसने बॉक्स खोला. एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मचें बाहर निकाली. उसने एक बॉक्स खोला, कुछ चम्मचें बाहर निकाली. दैट्स अ नाइस बॉक्स. अच्छा बॉक्स है ये. आई हर्ड माई ओन वॉइस. मैंने फिर से अपनी आवाज़ सुनी. दैट्स अ नाइस बॉक्स. अच्छा बॉक्स है ये. दैट्स अ नाइस बॉक्स. अच्छा बॉक्स है ये. आई हर्ड माई ओन वॉइस. मैंने अपनी आवाज़ सुनी. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस. बड़ी अजीब सी आवाज़ थी.
उसे फिर से याद आई अपनी पहले के टाइम माँ के समय वाली बात कि दैट्स अ नाइस वॉक, अच्छा वॉक से कहा होगी लाइन अपनी माँ से या उसकी माँ की प्रेजेंस में कही होगी, दैट्स अ नाइस वॉक, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी, मैंने अपनी आवाज़ सुनी, सब कुछ याद आ रहा है वस्तुओं को देख करके अपनी माँ के समय का समय। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, बड़ी अद्भुत सी आवाज़ थी, बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ थी, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, हालांकि इस कमरे में हर साउंड अलग था, हालांकि इस कमरे में हर साउंड अलग था। ओ यू नो अबाउट दैम, ओ यू नो अबाउट दैम, क्या तुम्हें इनके बारे में पता है क्या? उस लड़की ने पूछा क्या तुम्हें इनके बारे में पता है क्या? शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, मैं मुड़ी और मेरी चाय लेकर आई। शी लाड में हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती है कि एंटिक है। उस लड़की ने कहा, किससे? मुझसे, मतलब नरेटर कह रही है यहाँ पे, मुझसे कहा। लड़की यहाँ पे डॉटर जो है वो नरेटर ही है। द सेम डॉटर एक्चुअली शी गोज टू विजिट और शी वेंट टू बेसिकली फाइंड द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर्स ओके इन हॉलैंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। शी लाड में हंसी। माई मदर सेज इट्स एंटिक, उसने कहा मेरी माँ कहती है एंटिक है, बहुत ही पुरानी है, बहुत ही, एंटिक मीन्स प्राचीन है, बहुत ही पुरानी है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारी है, हमारे पास बहुत सारी है। शी पॉइंटेड डाउन द रूम, उसने कमरे की ओर इशारा किया। सी फॉर योरसेल्फ, कहा तुम खुद देख लो, आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, हमारे पास बहुत सारी है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ के इशारे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन, मुझे पता था किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, मुझे मालूम था वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही, जिस चीज़ के बारे में बात कर रही है वो सब हमारा ही तो है, हमारा ही तो था, हमारा ही है। ओके, आई न्यू विच थिंग्स शी मीन, मुझे मालूम है किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, मुझे पता है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। द डिफिकल्ट लाइन स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, ये स्टिल लाइफ के बारे में क्या बात हो रही है, ओके, प्रॉब्लम हो सकती है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल के ऊपर, मैंने टी टेबल के ऊपर केवल मात्र स्टिल लाइफ को देखा। स्टिल का मतलब एक होता है शांत अवस्था में, बेजान से पड़े हुए एक चित्र को देखा। देयर इज अ पिक्चर ऑन द टी टेबल बेसिकली, ओके, यहाँ पर टी टेबल पर एक पिक्चर है जिसे स्टिल लाइफ करके यहाँ बोला जा रहा है, स्टिल लाइफ, स्टिल लाइफ मतलब बेजान सा एक चित्र, वहाँ पर उसको देखा मैंने। टी टेबल पे एक चित्र है, एक पिक्चर उसे देखा मैंने, स्टिल लाइफ। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑफ द फ्यूचर प्लेट, एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, जब मैं बच्ची थी तो हमेशा कल्पना करती थी, द एप्पल ऑन द फ्यूचर प्लेट पर, जस्ते की बनी हुई प्लेट पर उस एप्पल को खाने की, जस्ते की बने प्लेट पर उस एप्पल को खाने की मैं हमेशा कल्पना करती जब मैं बच्ची थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, उसने कहा कि हम इसका इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं। लड़की ने कहा, वो इज बेसिकली अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड, उसने कहा इसका इस्तेमाल हम हर चीज़ के लिए करते हैं। Once we even ate of the plates hanging there on the wall. Once we even ate of the plates. एक समय तो ऐसा था कि हमने, अब आपको लगेगा once we even ate of the plates कि हमने प्लेट्स ही खा ली थी। प्लेट्स कैसे खाएंगे वो लोग? We use it for everything, she said, उसने कहा कि हम इसका इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं, इस प्लेट्स का इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं। हम इसका इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं। Once we even ate of the plates hanging there on the wall, और एक बार तो हमने जो है दीवार पर टकी हुई जो प्लेट्स हैं उस पर खाना भी खाया था। I wanted to so much, मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए थी, मन कर रहा था उन्हें मैं अपने हाथ में लूँ, but it wasn't anything special, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं था वहाँ पर, और it wasn't anything special, लेकिन वहाँ पर स्पेशल नहीं था। I had found the burn mark on the table cloth, और मुझे टेबल क्लॉथ का जो कपड़ा था उस पर बर्न मार्क मिल गया था। कहा था ना कि समथिंग ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, एक जला हुआ निशान होना चाहिए। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने टेबल क्लॉथ पे बर्न मार्क देखा था, बर्न मार्क मुझे मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, लड़की ने मेरी तरफ क्वेश्चनली का मतलब होता है प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा, और लड़की ने मुझ पर मेरी तरफ जो है प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा था। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गैट, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कि हाँ। आई सेड हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स, यू गेट सो यूज टू टच ऑल दिस लवली थिंग्स, इन सभी प्यारी सी चीज़ों को छूने की तुम्हें आदत सी हो गई होगी, तुम्हें हैबिट हो गई होगी। ओके, यू गेट सो यूज टू टचिंग, तुम्हें काफ़ी तुम्हें हैबिचुअल हो गया, तुम काफ़ी यूज हो गई होगी इन प्यारी प्यारी चीज़ों को छूने में। इन द हाउस, घर के अंदर। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम तो इनकी तरफ देखती भी नहीं होगी, तुम तो इनकी तरफ देखती भी नहीं होगी। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग,
कि हम जो है तुम जो है तभी नोटिस करती होगी जब कुछ खो जाता होगा, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर, क्योंकि उसे रिपेयर करवाना पड़ता है, और बिकॉज यू हैव लैंडेड, तुम्हें उसे लैंड करना पड़ता है, तुम्हें उसे लैंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, केवल तभी नोटिस करते हो जब कुछ खो जाता है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर, इसे रिपेयर करना पड़ता है, उसे ठीक करवाना पड़ता है, और बिकॉज यू हैव लैंडेड, क्योंकि तुमने उसे लैंड लिया है, तुमने उसे लैंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगेन आई हर्ड द अनैचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, एक बार फिर से मैंने अपनी, अगेन आई हर्ड द अनैचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, एक बार फिर से मैंने अपनी आवाज़ की अनैचुरल साउंड सुना, नेचुरली अननेचुरल, एक अप्राकृतिक सी ध्वनि, एक अप्राकृतिक सी, एक अजीब सी जो है आवाज़ मैंने सुनी, ध्वनि सुनी। एंड आई वेंट ऑन, मैं आगे बढ़ी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद था मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था, इफ़ आई वुड, पूछा था, कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि अगर मैं उनकी सहायता करती, क्योंकि अगर मैं उनकी सहायता करूँ सिल्वर को पॉलिश करने में, मैं सिल्वर के जो बर्तन वहाँ पर उनको पॉलिश करने में सहायता करूँ, हेल्प करूँ, ऐसा माँ ने मुझसे कहा था। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझे कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर, अगर मैं उनकी सहायता करूँ पॉलिश द सिल्वर, सिल्वर को पॉलिश करने में, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, काफ़ी लंबे समय पहले की बात थी। माँ ने मुझसे कहा था पॉलिश करने के लिए, पॉलिश मतलब जो सिल्वर के जो बर्तन उन्हें पॉलिश करने के लिए कहा था। एंड आई वॉज प्रॉबली बोर्ड, और मैं संभवतः काफ़ी बोर्ड थी, ओके, दैट डे, उस दिन, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और मुझे घर पर रुकना पड़ा था, और उस दिन मुझे घर पर रुकना पड़ा था, पहले की बात कर रही, याद आ रही है उसे, मुझे घर पर रुकना पड़ा था, बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार थी, मुझे घर पर रुकना पड़ा था, मैं बीमार थी। एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और उसने, मतलब माँ ने मुझसे कभी इसके बारे में नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर, मैंने माँ से पूछा, विच सिल्वर शी मीन्स, किस सिल्वर की बात कर रही हो आप? मैंने माँ से पूछा था किस सिल्वर की आप बात कर रहे हो, मतलब किस सिल्वर से मतलब क्या है आपका? एंड शी रिप्लाइड, माँ ने जवाब दिया, सरप्राइज, बड़े आश्चर्यचकित होते हुए कहा, दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉक्स एंड नाइफ्स, ऑफकोर्स, कि ऑफकोर्स, तो निश्चित रूप से इस बात, जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी मैं पॉलिश करने के बारे में बात कर रही थी, वो चम्मचें हैं, फॉक्स चाकू है, एंड नाइफ्स और छुरियाँ हैं। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बड़ी अजीब सी बात थी। I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. I didn't know the cutlery we ate of was a silver. I didn't know the cutlery. Cutlery का मतलब चाकू, जो चाकू वगैरह, कटलरी काटने का सामान, चाकू वगैरह जो कटलरी होते हैं, कि मुझे नहीं पता था। I didn't know, मुझे मालूम नहीं था, the cutlery we ate of every day was silver, कि जिस कटलरी से हम लोग खाना खाते थे, क्योंकि वेस्टर्न पीपल बेसिकली चम्मच से, चाकू से खाना खाते हैं, हम लोग हाथ से खा लेते हैं, वो भी हाथ हैंड यूज़ करते हैं, लाइक जनरली वो हैबिचुअल होते हैं लाइक नाइफ और स्पून से खाने में, ओके, मोस्टली। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, कि मुझे पता नहीं था कि जिस कटलरी से हम हर दिन खाना खाते थे वो सिल्वर की थी। किसकी थी वो? सिल्वर की थी, चांदी की थी। द गर्ल लाव्ड अगेन, और लड़की एक बार फिर से हंसी, और लड़की एक बार फिर से हंसी। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, मैं शर्त लगाती हूँ तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता। मैं शर्त लगाती हूँ, आई बैट यू, मैं शर्त लगा सकती हूँ, यू डोंट नो इट इज़ ईदर, तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने लड़की की तरफ बड़े घूर के देखा, बड़े इंटेंटली, बड़े निगाह डाल के देखा, इरादे के साथ। What we eat with, she asked. What we eat with, she asked. The girl was basically about 15 years old. उसने पूछा मुझसे What we eat with, कि हम खाना किसके साथ खाते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेशन चल रहा है, एड्रेस नंबर 46 पर, अंदर रूम में है, वस्तुओं के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात चल रही है फिलहाल। बीच बीच में पहले की रिमेंबरिंग बातें याद आती है उसको, अपने माँ के समय की, ओके। लड़की ने पूछा, अब वापस बैक है वो, ओके, व्हाट वी एट विद, कि हम खाना किसके साथ खाते हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा, वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो क्या? शी हेजिटेटेड, वह उड़ा हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड के पास गई, उसने कहा कि व्हाट वी एट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि हम खाना किसके साथ खाते हैं, मतलब ऐसे वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं जिनसे हम खाना खाते हैं। वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो क्या? शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड के पास गई, मतलब बगल वाली अलमारी के अलमारी हिंदी में होती है, एंड द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज अलमाइरा, नॉट अलमारी, ओके। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई।
शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड के पास गई, बाजू वाले बगल में जो बोर्ड था उसके पास गई, एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वह एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वह ड्रॉर को खोलना चाहती थी। आई लुक इट्स हेयर, आई लुक मैं देखूंगी, इट्स इन हेयर यहीं पर है, मैं देखूंगी यहीं पर है, मैं देखूंगी यहीं पर है सर। आई जम्प्ड अप, मैंने जंप किया। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। इन सारी बातों में, वस्तुओं के बारे में बातें करने में, साइड बोर्ड्स के बारे में बातें करते हुए, जो कटलरीज वगैरह की जिसकी मैं याद कर रही थी, सारा डिस्कशन करते हुए, आई फॉरगेट, मैं भूल गई थी। आई जम्प, मैंने छलांग लगाई, मैं कूदी, जंप किया मैंने। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। डिस्कशन में ऑब्जेक्ट्स के बारे में, द बिलोंगिंग्स दैट वर बिलोंग टू माई मदर, जो मेरी माँ की थी, सारा डिस्कशन करते हुए आई जम्प, मैं जंप किया। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी, मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर द मदर, शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। ओके, उसका हाथ जो है ड्रॉर पर ही था। उस लड़की का हाथ कहाँ पर था? ड्रॉर पर ही था। हम खाना किस चीज़ से खाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं, वो देखना चाहती थी, बताना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उस लड़की का हाथ ड्रॉर पर ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का वेट नहीं करना चाहोगे? इतना समय तुम रुकी हो यहाँ पर। डोंट यू वॉन्ट वेट फॉर मदर, क्या तुम मेरी माँ का वेट नहीं करना चाहोगे? माई मदर, नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे अवश्य जाना है, मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे पर चल कर गई। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, लड़की ने ड्रॉर को खोला रखा। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, लड़की ने ड्रॉर को, उस ड्रॉर को, उस दराज को खोला, खींचा खोलने के लिए। आई कैन फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैं अपना रास्ता खुद खोज सकती हूँ, मतलब मैं चले जाऊँगी अपने आप, मुझे पता है वे कहाँ पर है। मैंने कहा आई कैन फाउंड माई ओन वे, मैं चले जाऊँगी। एक्चुअली शी वेंट देयर टू जस्ट टू हैव और टू कलेक्ट द बिलोंगिंग्स ऑफ माई मदर, बट आई टोल्ड यू दैट even after knowing about the objects, even after finding the objects, she decides not to take back those belongings that were belong to her mother back at her home, because she believes that those belongings or those objects cannot or could not bring her dead mother back. तो कहा मैं चले जाऊंगी अपने आप बाहर में, मैं अपने आप ही चले जाऊंगी। I can find my own way, अपना रास्ता मैं खोज सकती हूँ। As I walk down the passage, जैसे मैं पैसेज के वहाँ से गई, I heard the jingling of spoons and forks, मैंने forks और spoons के jingling को सुना, खनखनाने की, छनछनाने की आवाज़ सुनी। उसने निकाल लिए थे ड्रॉर से साइड बोर्ड्स, जो अलमीरा थी वहाँ पे साइड वाली, उसके ड्रॉर से निकाल लिए थे वो फॉक्स, वो चाकू छुरी वगैरह जो है, स्पून्स, फॉक्स, चाकू छुरी, स्पून्स चम्मच से निकाल, इससे हम खाना खाते हैं। पूछा था ना कि व्हाट वी एट विथ, हम खाना किससे खाते हैं? हम खाना स्पून से खाते हैं, हम लोग खाना फॉक्स से खाते हैं, और वो हमारे ही थे। उसने निकाला था, उसकी जिंगलिंग की आवाज़ मुझे सुनाई। जब मैं जा रही थी अपने बाहर, तो मुझे जिंगलिंग की आवाज़ सुनाई थी, मुझे स्पून की, मुझे फॉक्स के खनखनाने की आवाज़ सुनाई थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और रोड के कॉर्नर पर मैंने नेम प्लेट की ओर देखा। जब मैं वहाँ से निकली घर के बाहर, माँ का तो वेट नहीं किया, उसकी माँ का इंतजार नहीं किया। आई डिड नॉट वेट फॉर हर मदर एट ऑल एट दैट टाइम, बिकॉज आई वॉज हरी टू द कैच माई ट्रेन। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और रोड के कॉर्नर पर मैंने नेम प्लेट की ओर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था, मार्कोनी स्ट्रीट। उस नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ था? मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था। इस साइड उस प्लेट पे लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। I had been at number 46. I repeat the line again. At the corner of the road, I looked up at the name plate. और रोड के कॉर्नर पर मैंने नेम प्लेट की ओर देखा। Marconi Street is said. I had been at number 46. मैं नंबर 46 पर थी। The address was correct. Address बिल्कुल correct था। The same address which was basically told by my mother at that time. Okay, in the first half of the Second World War. The World War which was held between or during the 1939 to 1945, the first half, उस समय की बात थी। बताया था एड्रेस के बारे में, नंबर 46, the address was correct, एड्रेस बिल्कुल सही था।
बट नाउ एड्रेस सही तो होता ही, सारी चीज़ें हमारी थी वहाँ पर, पहचान गई थी उसको, बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर दिस एड्रेस एनी मोर, लेकिन अब मैं इसको और अधिक याद करना नहीं चाहती। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे और याद करना नहीं चाहती। आई वुडंट गो बैक देयर, अब मैं वापस वहाँ पर नहीं जाऊँगी, बिकॉज क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, अब वापस वहाँ पर नहीं जाऊँगी बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, वह ऑब्जेक्ट्स जो आपकी मेमोरी से जुड़े हुए हैं, आपकी यादों से जुड़े हुए हैं, अब मैं वहाँ पर दोबारा नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स, वे वस्तुएँ, वो चीज़ें जो आपकी यादों से जुड़े हुए हैं विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय के फैमिलियर लाइफ से, एक जाने पहचाने जीवन से, हमारे जीवन से जुड़े हुए वे चीज़ें, वस्तुएं वापस नहीं जाऊंगी। इंस्टेंटली लॉस दैट वैल्यू, वह चीज़ें, वस्तुएं तुरंत ही अपने मोल को खो देती है। आई रिपीट द लाइन फॉर ऑल ऑफ यू, आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊँगी क्योंकि वे ऑब्जेक्ट्स जो तुम्हारी मेमोरी से लिंक है, तुम्हारी यादों में समाये हुए हैं, तुम्हारी यादों से जुड़े हुए हैं विद द फैमिली लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पूर्व के समय के फैमिली लाइफ से, आपके अपने जीवन से, जाने पहचाने जीवन से। इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, वे ऑब्जेक्ट्स, वे वस्तुएं जो है तुरंत ही अपने मोल को खो देते हैं। व्हेन सर्व फ्रॉम दैम, जब आप उनसे जुदा होते हैं, जब आप उनसे अलग हो जाते हैं तो उसका उनका मोल खत्म हो जाता है। ओके, यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, आप उन ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेंज सराउंडिंग में, यू सी दैम अगेन, आप उन चीज़ों को जो है स्ट्रेंज सराउंडिंग में, बड़े अजीब से, बड़े अद्भुत से वातावरण में फिर से देख सकते हो। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, and what should I have done with that, and what should I have done with them in a small rented room, और मैं उन what should I have done with them, और मैं क्या करूँगी उनका, उन सारी वस्तुओं का that belongs to my mother, belong to my mother, और मैं क्या करूँगी उनका in a small rented room, छोटे से किराए के इस मकान में, अब मैं रेंट पे रहती हूँ, उसमें मैं क्या करूँगी इन सारी चीज़ों का, कहाँ रखूँगी मैं, क्या करूँगी मैं उन सभी चीज़ों का। Where the shreds of blackout paper still hung along the windows, उस rented house में, उस किराए घर में, जहाँ पर अभी भी जो है shreds of blackout paper, जहाँ पर अभी भी shreds of blackout paper, blackout समय के जो पेपर है उसके टुकड़े जो हैं, shreds of blackout paper, blackout टाइम के blackout पेपर जो हैं, ब्लैकआउट पेपर्स, कागज़ के जो स्ट्रेड्स हैं, टुकड़े हैं, अभी भी हंग हैं, टके हुए हैं अलॉन्ग द विंडोज़, खिड़कियों के साथ बगल में। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर्स, एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, और मुट्ठी भर कटलरी मीन्स वही चाकू छुरी वगैरह जो होता है, और मुट्ठी भर कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, जो कि नैरो से एक छोटे से टेबल की ड्रॉर में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं है मेरे पास। कहाँ रखूँगी सब चीज़ों को मैं, क्या करूँगी उनका। I resolved to forget the address. The daughter said, as the narrator here, just to have the finishing of the line, I resolved to forget the address. मैंने रिजॉल्व किया, मैंने दृढ़ संकल्पना की कि मैं एड्रेस को भूलूंगी, I resolved to forget the address, मैंने रिजॉल्व किया एड्रेस को भूलने का, मैंने संकल्पना ली कि मैं एड्रेस को भूल जाऊंगी। Of all the things I had to forget, address of all the things I had to forget, that would be the easiest. Of all the things that I had to be forget, उन सभी चीज़ों को जो मुझे भूलनी होगी, उन सभी बातों को जो, उन सभी वस्तुओं को जो मुझे भूलनी होगी, उन सभी वस्तुओं में से that would be the easiest, ये बड़ा आसान होगा। क्या आसान होगा? Forgetting about the address, एड्रेस को भूलना। उन सभी बातों में जो मुझे भूलना होगा वो सभी आसान होगा, बहुत आसान। उन सभी बातों को जो मुझे भूलना होगा उन सभी में से एड्रेस को भूलना बड़ा आसान होगा। आई रिजॉल्व, मैंने संकल्पना ली, टू फॉरगेट द एड्रेस, एड्रेस को भूलने की। ऑफ ऑल द थिंग्स, सभी बातों को भूलने की, सभी वस्तुओं को भूलने की। आई हैव टू फॉरगेट, जो मुझे भूलनी पड़ी थी। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और इन सभी बातों में दैट वुड बी द ईजिएस्ट, सब कुछ ये बड़ा आसान होगा। एड्रेस को भूलना, चीज़ों को भूलना बड़ा आसान होगा। क्यों बोलना आसान होगा? बिकॉज एट लास्ट she decides that those things cannot bring her dead mother back. Or in past we can say that she decided that those things could not bring her dead mother back. ये सारी चीज़ें
जो मृत माँ है, जो माँ अब नहीं रही, उसे वापस तो नहीं ला सकती ना. इट्स ऑल अबाउट द एड्रेस, इट्स ऑल अबाउट द माँ की वस्तुएं, मदर्स बिलोंगिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, नरेटर, द डॉटर, द सेम वी हैव. ओके, as far as the questions are concerned, students, you may be so confused about the writing question of the same chapter, because the same would be asked in your board examination, in your annual examination. You are the students in your board exam. In chapter number first, just I haven't told you about the question. Yeah, 4 questions are there. Just write the 4 questions of textual one, because in between there are no questions. In chapter number first, question number first, second and third, and question number first, second, third and fourth at the last of the chapter on page number 8 and 9. In chapter number second, if you have any difficulty in writing these questions, then send me on my WhatsApp number. I'll send you the answer. Okay. On page number 14 of chapter number second, students, question number first, second, third and fourth. Again, you have 4 questions. If there are, the additional one will be awarded to all of you in your assignments when the strategy will have in management. Okay, students, it's time to go back again. Thank you and have a nice day. It's all about today.